मुकेश अंबानी यहाँ पर कहते हुए कि 6 महीने में दुनिया भर के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और जो ग्राहक संख्या है रिलायंस जियो की वो 170 दिनों में 10 करोड़ के पार पहुंचती हुई नजर आई। तो रिकॉर्ड नंबर है ये। हर सेकंड 7 ग्राहक जोड़े हैं कंपनी ने। भारत सबसे ज्यादा मोबाइल डेटा यूसेज करने वाला देश है और ब्रॉडबैंड खपत में 5 बड़े देशों में शामिल हो सकता है। बड़ी बात यह कि 1 अप्रैल से टैरिफ प्लान तो लॉन्च हो जाएंगे लेकिन वॉइस कॉल्स किसी भी नेटवर्क पे फ्री रहेंगी। तो ये एक बड़ी अनाउंसमेंट रिलायंस जियो के संदर्भ में मुकेश अंबानी करते हुए नजर आए। लेकिन मुद्दा कहीं ना कहीं प्रीडेटरी प्राइसिंग से रिलेटेड है, प्रमोशनल ऑफर से रिलेटेड है और बड़ी टेलीकॉम कंपनियां जो हैं प्रतिद्वंदी जो हैं रिलायंस जियो के, जैसे कि भारती एयरटेल, आइडिया सेलुलर, उन्होंने टी-सैट में ऑलरेडी शिकायत कर दी है कि ये जो प्रीडेटरी प्राइसिंग कंपनी लेके आई है इसका हर्जाना भरना पड़ रहा है पूरी इंडस्ट्री को और उसका असर बॉटम लाइन पे साफ तौर पे देखने को मिल रहा है बड़ी कंपनियों के नतीजों में, जैसे कि भारती एयरटेल और आइडिया सेलुलर। लेकिन फिलहाल जो आज अनाउंसमेंट्स हुई हैं उसमें 170 दिनों में 10 करोड़ ग्राहक अब रिलायंस जियो के पास हैं और हर सेकंड 7 ग्राहक कंपनी ने जोड़े हैं। मोबाइल डेटा यूसेज जो है वो देश की जो भारत की सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में, ऐसा मुकेश अंबानी कहते हुए नजर आए। अब इंपॉर्टेंट ये भी है कि हर गांव हर शहर में रिलायंस जियो पहुंचेगा और 2017 का टारगेट है कि 99% आबादी जो है वो रिलायंस जियो तक उनकी पहुंच हो जाए। और इसका मतलब ये है कि कंपनी विस्तार पे, चैनल्स बढ़ाने पे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पे खास तौर पे जोर देगी। तो ये बड़ी अनाउंसमेंट्स मुकेश अंबानी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हुए नजर आए। Enrollment will start from the 1st March and will remain open until 31st March 2017. The Jio Prime members are eligible for some amazing benefits. 1. Jio Prime members can continue enjoying the unlimited benefits that they have got used to during the Jio New Year offer for another 12 months until 31st March 2018. Only the Jio Prime members can get this tremendous value for a rock bottom introductory price of only rupees 303 per month, effectively just rupees 10 per day for another full year. We will offer other extreme value plans exclusively for our Jio Prime members, and you will be able to see their details via the MyJio app and Jio.com. 2. Jio Prime members can get the full bouquet of Jio's media services worth over rupees 10,000 for an annual subscription, completely free for 1 full year until 31st March 2018. And 3, we are putting together a lineup of very attractive deals and offers from both Jio and its partners, again, only for the Jio Prime members, which will continuously delight you. Friends, we are committed to returning your trust in us, and you can count on us to give you back manifold, many surprises in the coming days. As they say in Mumbai, unlimited maza continue hoinga. Enrolling for the Jio Prime membership is a very simple process. Starting 1st March, you can do this on your own through the MyJio app or the Jio.com website, or you can simply walk into any Jio store or any Jio partner store. This is a limited time opportunity
that we are launching only for our existing customers, and I invite all of you to enroll at the earliest. Friends, in less than 6 months, Jio and India have together taken mammoth strides on our journey towards global digital leadership. We are committed to serving you and winning your confidence every single day. Once again, I thank you for being a part of the growing Jio family. We are grateful for your trust, and we are obsessed 24/7 with providing you a superior customer and service experience. For me, it is a particular honor and privilege to be a part of this journey with you, and I am grateful to you for being part of the Jio community, for being part of the Jio Together movement. I am confident that with Jio, your life is digital and your life is beautiful. May God bless you and your family, and may God continue to bless our great nation, India. Thank you. चलिए, तो बड़ी अनाउंसमेंट जो है वो रिलायंस जियो के स्टेबल से मुकेश अंबानी इस समय करते हुए नजर आए, और मुद्दा ये है कि जो फ्री ऑफर्स की कड़ी है उसको आगे बढ़ाया गया है। खासतौर से जियो प्राइम मेंबरशिप का ऐलान कर दिया गया है, यानी 31 मार्च तक, 1 से 31 मार्च तक ये प्राइम मेंबरशिप ले सकते हैं। 99 रुपये की प्राइस पे, यानी कि रॉक बॉटम प्राइस पे ये प्राइस मेंबरशिप मिल रही है, और इसमें पूरा ही बुके जो रिलायंस जियो ऑफर कर रहा है वो इसमें मौजूद है, और बड़े सरप्राइजेस पाइपलाइन में है, मुकेश अंबानी ने ये साफ तौर पे कहा। तो ये जो फ्री डेटा ऑफर्स, अनलिमिटेड डेटा ऑफर्स है, इसकी कड़ी को और आगे बढ़ा दिया गया है रिलायंस जियो की ओर से। लेकिन ग्राहक संख्या और इनफैक्ट ये जो ब्रॉडबैंड कनेक्शंस की एकदम से एक रेवोल्यूशन आया है रिलायंस जियो की वजह से। अब ट्राई का डेटा खुद कहता है कि रिलायंस जियो के पास देश में सबसे ज़्यादा ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स हैं। सजीव वसीम जी मेरे साथ से मौजूद हैं। वसीम साहब, बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर, आपने सुना होगा रिलायंस जियो का एक ये जो ऑफर, फिर से एक नया ऑफर लॉन्च किया है, मुकेश अंबानी साहब ने इसकी घोषणा की है। लेकिन ओवरऑल अब इसका असर टेलीकॉम सेक्टर पे कैसे देखते हैं? पहले ही हिट हो चुकी है बॉटम लाइन कई कंपनियों की, बड़ी कंपनियों की। आपके हिसाब से टेलीकॉम सेक्टर का आने वाला समय के लिए भविष्य कैसा है? हाँ, देखिए, आपको ये एक थोड़ा सा लंबे नजरिया से देखना पड़ेगा, बिकॉज द कंपटीशन इज इंटेंस। और अभी जो उन्होंने एक और पैकेज लॉन्च कर दिया है, उसका मतलब ये जेस्टेशन पीरियड है, ये 3 से 6 महीने और जारी रहेगा। हाउएवर, आई थिंक बॉटम लाइन्स पे हमें पता है कि इसका क्या असर रहेगा, और वो दिख ही गया था हमें भारती एयरटेल और आइडिया के रिजल्ट से। लेकिन कंसोलिडेशन इज द बज़वर्ड, और हमें दिख रहा है कि कंसोलिडेशन गोइंग अहेड विल बी वेरी वेरी की। तो जैसे आइडिया वोडाफोन मर्जर हो गया, आरकॉम की अब बात चलती है, एयरसेल के अलावा टाटा टेली। आई थिंक द नेम ऑफ द गेम विल बी कंसोलिडेशन। लेकिन आगे 1 साल के बाद हमें लगता है इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे, बिकॉज प्राइसिंग पावर विल कम बैक, और उस कारण से वेदर इट्स रिलायंस और एयरटेल, आई थिंक देयर विल बी इनफ रूम टू सर्वाइव फॉर ऑल द प्लेयर्स। अच्छा, पर जो मौजूदा सर फ्रेमवर्क है टेलीकॉम सेक्टर का, उसमें ट्राई का खुद मानना है कि प्रीडेटरी और प्रमोशनल ऑफर्स इतने स्पष्ट नहीं हैं। उनके लिए दोबारा से कंसल्टेशन पेपर ट्राई ने दिया है। तो ओवरऑल अब क्या आप मानते हैं कि रेगुलेशंस को रिवाइज करना टेलीकॉम सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया? हाँ, ये तो अनिवार्य है, और ये आपको पता है ये अटकलियां चलती रहेंगी, क्योंकि वन विल बी पिच्ड अगेंस्ट द अदर, और वो कॉन्स्टेंटली दे विल बी ट्राइंग टू सी कि कहाँ हमें स्पेस ज़्यादा मिल सकता है। लेकिन अब गोइंग फॉरवर्ड अगर बेट लगानी हो टेलीकॉम स्टॉक्स पे, तो ये मर्जर एक्विजिशंस की खबर डोमिनेट करेगी, या फिर ये फ्री ऑफर जो रिलायंस जियो ने जो एक छेड़ रखी है वो डोमिनेट करेगी? आपके हिसाब से टेलीकॉम स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए और कौन से स्टॉक पे फोकस रखें? संजीव जी, सुन पा रहे हैं मुझको आप? चलिए, लगता है कि उनसे संपर्क कट गया है। लेकिन मुद्दा यही है कि जो प्रीडेटरी और प्रमोशनल ऑफर्स, ऐसा कंपनियां कह रही हैं, प्रतिद्वंदी कह रहे हैं कि रिलायंस जियो ने लॉन्च कर रखा है, और इसका असर कंपनियों की बॉटम लाइन पे, पूरी इंडस्ट्री पे पड़ता हुआ नजर आ रहा है। उसको कहीं ना कहीं खत्म करने पर ट्राई को जोर देना चाहिए। टीडी सैट ने भी ट्राई से पूछा है कि आखिर इतना ज़्यादा लेवरेज रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिला कैसे, रिलायंस जियो को मिला कैसे, और उसके लिए अब ट्राई ने 32 पन्नों का कंसल्टेशन पेपर भी दिया, जिसमें टैरिफ्स ऑर्डर्स को साथ साथ नए फ्रेमवर्क के ऊपर विचार करने के लिए कंसल्टेशन पेपर है। लेकिन ओवरऑल आज एक और बड़ी अनाउंसमेंट है, और उसमें फ्रीबीज
तो नहीं कहूँगा मैं। अब टैरिफ्स शुरू होने वाले हैं रिलायंस जियो के, लेकिन फिलहाल वॉइस कॉल्स फ्री रहेंगी। 1 अप्रैल से टैरिफ्स तो लॉन्च हो जाएंगे रिलायंस जियो के, लेकिन वॉइस कॉल्स किसी भी नेटवर्क पर अभी जो कोई चार्ज नहीं लेती कंपनी, वो 1 अप्रैल के बाद भी जारी रहेगी। हाईलाइट पॉइंट्स इस पर्टिकुलर प्रेस मीट की ये थे कि 170 दिनों में 10 करोड़ ग्राहक जोड़े हैं। मोबाइल डेटा यूसेज भारत सबसे ज़्यादा करता है दुनिया में। ब्रॉडबैंड खपत 5 बड़े देशों में नाम शामिल हो सकता है भारत का। और कंपनी रिलायंस जियो खुद डेटा कैपेसिटी को बढ़ावा देगी, उसमें भी 2 गुना कर देगी आने वाले समय के लिए डेटा कैपेसिटी, यानी कि कारोबार एक्सपेंशन पे जोर शोर से कामकाज जारी है। हर गांव हर शहर में रिलायंस जियो पहुंचेगा। 99% आबादी तक का लक्ष्य है कवर करना 2017 में। और 1 अप्रैल से टैरिफ प्लान लॉन्च करेगी जिसमें वॉइस कॉल्स अभी भी फ्री रहेंगी। 1 से 31 मार्च तक रिलायंस जियो प्राइम मेंबरशिप का ऐलान कर दिया गया है। 99 रुपये में प्राइम मेंबरशिप मिलेगी और प्राइम मेंबर्स को 1 साल का बुके जो है वो रिलायंस जियो फ्री दे रही है, यानी कि अनलिमिटेड डेटा ऑफर्स अभी भी रिलायंस जियो के स्टेबल से ग्राहकों को मिलते रहेंगे। चार्ज हालांकि 99 रुपये का रखा गया है, प्राइम मेंबरशिप की एक तरीके से लागत, एक कॉस्ट। लेकिन ओवरऑल ये जो हैप्पी न्यू ईयर ऑफर दिया गया है इसको अभी भी कंटिन्यू किया गया है। और जो मैं बात कर रहा हूँ, एक बार फटाफट से टेलीकॉम स्टॉक्स देख लेते हैं, क्योंकि रिलायंस इस मीट से पहले स्ट्रांगली मोमेंटम में था। अब मात्र 10 रुपये के आसपास बढ़त देखने को मिल रही है। ऊपरी स्तरों पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुई है। आइडिया सेल्युलर आज फिर से ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली, आधे फीसदी के लॉसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 170 के लेवल पे कामकाज कर रहे हैं। भारतीय एयरटेल ऊपरी स्तरों पर आज टिक नहीं पाया, यहाँ पर भी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। तो टेलीकॉम स्पेस ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर खबर से फिर से इफेक्ट होता हुआ नजर आएगा। देखना होगा कि अब रणनीति क्या अपनाती हैं कंपनियां। पर फिलहाल रिलायंस जियो को टक्कर देना थोड़ा मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आंकड़े बता रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो रिलायंस जियो जो है वो ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी है पिछले 6 महीने में। ब्रॉडबैंड खासतौर से ये जो सेगमेंट है इसमें सबसे ज़्यादा ग्राहक जो है वो कंपनी के पास हैं, ऐसे ट्राई के आंकड़े बताते हैं। ऊपर से अब ट्राई खुद टीडी सैट को क्या जवाब देती है वो टेलीकॉम सेक्टर के लिए मायने रखेगा। आइडिया सेल्युलर, भारतीय एयरटेल प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस इन दोनों स्टॉक्स पर निचले स्तरों से कुछ खरीदारी देखने को मिल रहा है। रिलायंस कम्युनिकेशन अब 2.5% ऊपर आ चुका है। महेश उप्पल साहब मेरे साथ अब मौजूद हैं। महेश जी, शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर, ये जो आज अनाउंसमेंट हुई है 1 अप्रैल से टैरिफ प्लान तो लॉन्च कर रही है कंपनी, वॉइस कॉल्स फ्री रहेंगे, इसको कैसे देखते हैं आप और क्या इसे प्रीडेटरी प्रमोशनल ऑफर अभी भी माने क्या? नहीं, देखिए, मेरा शुरू से ये मानना है कि ये प्रेडिटरी रेट्स नहीं है, क्योंकि प्रेडिटरी रेट्स होने के लिए कंपनी के पास मार्केट पावर होना जरूरी है, जो कि इस वक्त टेक्निकली स्पीकिंग रिलायंस को या किसी और कंपनी को भी एक्चुअली इस टाइम पे नहीं है। तो वो तो बात अलग है। दूसरी बात यह है कि ये संभावित था कि अब टैरिफ लगेंगे, और मेरे मानना है कि ये भी संभावित था कि ये टैरिफ बहुत कम होंगे, क्योंकि कंपनी को ये प्रेशर बनाने की जरूरत अभी भी लगती है क्योंकि आपके मार्केट पे, क्योंकि उन्होंने काफी कंसोलिडेशन फोर्स कर दिया है मार्केट में। आप देख रहे हैं जो हर एक प्लेयर के लिए जो बच जाएंगे अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि वो चाहे अपना रेवेन्यूज ना बढ़ा पाए, उन्होंने बाकी कंपेटिटर्स के लिए रेवेन्यूज की काफी कम कर दिए हैं। कब 20-25% घटोती है उनके रेवेन्यूज में। तो अपने आप यदि आप अपने कंपेटिटर को वीक कर रहे हैं, उसको भी एक तरीके से आप अपनी जीत मान सकते हैं। तो कंपनी काफी एग्रेसिवली अपने कंपेटिटर्स के पीछे। सर, एक छोटा सा सवाल होगा मेरा, उसका जवाब भी अगर आप संक्षेप में रखें तो अब टेलीकॉम सेक्टर का आउटलुक भविष्य कैसा है? कंसोलिडेशन, ये जो बज़वर्ड है, ये अब होगा क्या, और क्या बड़े कंसोलिडेशन मोड पे कंपनी आ जाए? हाँ, इसमें कंसोलिडेशन भी होगा, और टेलीकॉम सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा अच्छे दिन भी नहीं है, क्योंकि उनके रेवेन्यूज पे बहुत बड़ा प्रेशर आया है, और ये लॉन्ग टर्म में टेलीकॉम सेक्टर के लिए ज्यादा अच्छी बात नहीं है, मेरा मानना है। पर ये देखना पड़ेगा क्या होता है। चलिए उप्पल साहब, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, और इस महत्वपूर्ण दिन जी बिजनेस को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।